लर्नर्स, इग्नो के जितने भी लर्नर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। अभी लर्नर्स के लिए बारे में बात कर रहा हूँ। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये सारे लर्नर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपना असाइनमेंट मनोविकास इग्नो स्टडी सेंटर के थ्रू कैसे सबमिट कर सकते हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जितने भी लर्नर्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपका स्टडी सेंटर 29047D है तो ही आप इस वेबसाइट पर अपना असाइनमेंट सबमिट करें, अन्यथा हर असाइनमेंट को आपको अपने स्टडी सेंटर के अनुसार सबमिट करना होगा। और मनोविकास का जो आपको असाइनमेंट सबमिशन का जो तरीका है वो हमारे वेबसाइट के थ्रू है। ये सिर्फ आपको आसान एक्सेस देने के लिए बनाया गया है जिससे कि आपका प्रोसेस आसान हो जाए, आपको ईमेल ना ढूंढना पड़े, आपको और कोई प्रोसेस नहीं ढूंढना पड़े। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मनोविकास का एक वेबसाइट, जो वेबसाइट का नाम है igno.manovikas.family। आपको मैं पुनः रिपीट करता हूं, जो मनोविकास में अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसमें वेबसाइट है igno.manovikas.family। So please, all learner, please keep in your mind, this is only I'm talking about the study center 2904D for Manovikas Charitable Society. If your study center is Manovikas Charitable Society, then you have to follow this process to submit your assignment. So for that, submitting the assignment, you have to keep the website name. Remember your website name. The website name is the igno manovikas.family family। So now I will start the process कि आपको कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। once you go to this website, this is the igno special study center website 29047D, और आप इसमें देखेंगे तो आपके फ्रंट पेज पे, जो होम पेज पे आपका वेलकम मैसेज होगा, बहुत सारे यूजफुल लिंक्स होंगे जो कि हमारे पास इग्नो से बार बार आते हैं, और यहाँ पर एक असाइनमेंट सबमिशन का बटन है जिसको आपको क्लिक करना है। Once you click this assignment submission button, then you will find out कि how to submit the online assignment। तो आपको सबसे पहले you have to please read carefully following the instructions before submitting the assignment। तो सबसे पहला instructions है all the assignments should be handwritten and submitted in the PDF forms। Second instructions है your assignment should contain the following page as described। The page number 1 has the assignment information format and must be written। जो पहला पेज नंबर है उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन लिखे होने चाहिए, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका कोर्स कोड, कोर्स का टाइटल, स्टडी सेंटर कोड 29047D, और स्टडी सेंटर का नाम मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी, योर ईमेल आईडी, your phone number। So and also if you see ki how to write this first page, you see the please see the use the samples। यहाँ पर एक हमने आपको samples भी दिया है, तो आप इस sample को use कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस sample में वही है, नाम, enrollment number, आपका सारा चीज, and then your regional center code and date of submission of assignment। And again I'll tell you the page number 2। Page number 2 of your assignment should have the assessment sheet for the program under the numerical marking system। तो उसका भी एक फॉर्मेट है, and this second format is like this, and this is the format where your counselor gives you the marks। जहां पर आपके काउंसलर्स आपको रिमार्क्स देते हैं, मार्क्स देते हैं। तो ये भी पेज नंबर 2 आपको असाइनमेंट के साथ लगाना है। And the third part is the only handwritten assignments are accepted। Therefore, write your assignment neatly and leave sufficient margin to in each page। जो आपके चौथाई होते हैं उसको अच्छे से रखना है, और सिर्फ आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही आपको भरना है। Mention your name, enrollment number and signature on the upper margin of each page। तो जब आप देखेंगे कि ये एक हमारे पास सिंपल असाइनमेंट है जिसमें क्या हुआ है कि हर लर्नर को
हर लर्नर को ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड देन सी कि यहाँ पर जितने भी लर्नर्स, आपको पहला थर्ड पेज में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एंड each learner has to write their name, enrollment number in their all the pages. See, ये कोई assignment हमारे पास sample है. You can see all the pages has written by the person, उसका name, enrollment number, subject, program code, and you have to put the signature also in each page. So this is the we can tell you this is the uh, fourth part of the our things. Then complete all questions of assignment of the particular course. It may be have the 5 courses. So you have to read what are the assignments is given by the IGNOU. आप IGNOU के वेबसाइट पे जब असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं तो आप IGNOU के वेबसाइट पे देखिए कि कौन कौन सा असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं. तो आप जस्ट यू टेक कंप्लीट कोर्स, एक कोर्स का एक पूरे कोर्स का क्या क्या असाइनमेंट्स है उसको आपको देखना है और उसको पूरे एक पेज में डालना है. आपको पता होगा कि प्रोग्राम का मतलब अलग होता है और कोर्स का मतलब अलग होता है. प्रोग्राम का मतलब होता है आपका MSW या BSW या BA, और कोर्स का मतलब होता है उसके अंदर जो जो चीज आपको पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है. तो हर कोर्स का आपको एक ही असाइनमेंट बनाना है. हर कोर्स के लिए सिर्फ एक असाइनमेंट बनाना है और उसी असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है. देन द सेकेंड थिंग इज the point number 6, scan the assignment in the following sequence. Remember the PDF size should not be more than 5 MB. जब आप असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, आप असाइनमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि your assignment should not go more than 5 MB. The page number 1 which I have told you, this page number 1 is first page, and then is the, you can see the page number 2. This is the page number 2 is the second page, and then your handwritten assignment. Then this is the handwritten assignment. You have to put the questions and everything. This is your next part of your assignment, and you should be ready with your email ID. I think I will request everyone, all the our learners, please keep the Gmail ID. That will be the easiest way to सबमिट द असाइनमेंट. आपका कोई भी जीमेल आईडी होगा, आपको वो जीमेल आईडी याद रखना होगा और वही जीमेल आईडी हर बार आपको यूज करना है. सो वेयर यू हैव रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट एंड असाइनमेंट, इसी जब आप हमारे पास इस मेथड के थ्रू असाइनमेंट एक्नॉलेज सबमिट करेंगे तो आपको फिर उसी ईमेल पे आपका एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा. देन यूज द असाइनमेंट सबमिशन बटन ऑन द website of igno.manovikas.family. Again, once again, I'll tell you, this is only for the learners, those who are studying what? Studying at IGNO Study Center 29047D, Manovikas Charitable Society, and it has the separate website. That website is called igno.manovikas.family. Each assignment should be submitted separately by using assignment submission button on the website. आपके जितने भी कोर्स हैं, जो भी कोर्स, अगर आपके 4 कोर्स हैं, 5 कोर्स हैं, 2 कोर्स हैं, 1 कोर्स है, जितने भी कोर्स हैं, हर कोर्स का असाइनमेंट सेपरेटली सबमिट होगा और इसी वेबसाइट के थ्रू सबमिट होगा. फिल ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली ऑन द फॉर्म्स, अटैच द PDF एंड असाइनमेंट इन द फॉर्म. तो आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जितने भी उसमें फॉर्म में जो भी इंक्वायरीज है, दैट यू हैव टू सबमिट, that you have to fill, and again you have to attach the assignment. जो भी आपका असाइनमेंट आपने 5 MB का बना रखा है उसको PDF फॉर्म में उसको अटैच करना है. अगेन आई टेल यू इन द हिंदी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो IGNO स्टडी सेंटर 29047D है, उसमें कैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है. तो आपको ये गाइडलाइन पढ़ना है असाइनमेंट सबमिट करने से पहले और उस निर्देश को पूरी तरह से पालन करना है. सभी कार्य हस्तलिखित और PDF प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे. जितने भी काम होंगे पहले आपको हाथ से लिखना है, फिर उसका PDF बनाना है. आपके असाइनमेंट में निम्नलिखित पृष्ठ शामिल होने चाहिए. जब भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, इसमें पेज नंबर 1 जो हमने आपको ये दिखाया, पेज नंबर 1 का नमूना, इस तरह से आपको पहले पेज नंबर 1 लगाने हैं.
आपके असाइनमेंट में पेज नंबर 2 जिसमें कि आपका इवैल्यूएटर रिमार्क्स देगा वो लगाने हैं। देन इज हस्तलिखित कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। आप असाइनमेंट टाइप नहीं करेंगे, आप हाथ से लिखेंगे। और अगर आपको टाइप करना है किसी को भी, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है या किसी को कोई और स्पेशल नीड है तो सिर्फ वही टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है। तो अगर आप सारे असाइनमेंट को हाथ से लिखिए, फिर प्रत्येक पेज में थोड़ा सा मार्जिन छोड़िए, दोनों ही तरफ चारों ही तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़िए जिसमें कि जो भी असाइनमेंट का रिमार्क्स होगा वो लिखा जाएगा। और केवल हस्तलिखित असाइनमेंट ही स्वीकार किए जाएंगे। आप अपने असाइनमेंट को पूरी तरह से पढ़िए, इग्नो के वेबसाइट से आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको ध्यान से कि सिर्फ उस असाइनमेंट का जो आंसर है वो हाथ से आपका लिखना है। और विशेष पाठ्यक्रम के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों का आंसर दें। आपके जो भी हर कोर्स में जितने एक ही असाइनमेंट होता है उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर एक ही पूरे असाइनमेंट में आपको लिखना है। और उस असाइनमेंट को जब आप लिख लेते हैं तो क्या होगा कि आपको स्कैन करना है। तो जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप स्कैन करेंगे तो उसमें पहला जो स्कैन का पेज होगा असाइनमेंट पृष्ठ नंबर 1, पेज नंबर 1 होगा उस असाइनमेंट का। फिर दूसरा क्या होगा, पेज नंबर 1 अब मैंने आपको कई बार दिखाया, ये वाला पेज नंबर 1। और ये पेज नंबर 1 ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, यू कैन डाउनलोड इट हियर, ठीक है। फिर पेज नंबर 2 का यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आपको पहले पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और फिर जो तीसरा हमने आपको एक सैंपल भी दिया हुआ है कि असाइनमेंट कैसे आपको लिखना है, कैसे वो नाम, इनरोलमेंट नंबर और आपको साइन करना है हर पेज पे। तो आपको अपनी ईमेल आईडी चाहिए, आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। और हम लोग प्रेफर करेंगे कि आपके पास जीमेल आईडी हो, जीमेल का आईडी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तब तो आपको बड़े आसानी से असाइनमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी आपके उस पर चला जाएगा। वेबसाइट पे ऑनलाइन असेसमेंट सबमिशन का बटन दबाना है फिर आपको। और फिर प्रत्येक असाइनमेंट को वेबसाइट पर असाइनमेंट सबमिशन बटन दबा के अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया जाना है। अगर आपके 5 असाइनमेंट 5 कोर्स के अलग अलग असाइनमेंट हैं तो आपको 5 बार ये असाइनमेंट सबमिशन का बटन दबा के अलग अलग तरीके से असाइनमेंट सबमिशन करना है। आप ये सोचेंगे कि एक ही बार कर देंगे तो वो नहीं होगा। तो मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा कि हम असाइनमेंट सबमिशन के बटन पर जब चाहते हैं तो क्या होता है। तभी एक ऐसा पेज खुलता है और असाइनमेंट सबमिशन वही जो रूल्स मैंने आपको बताए थे वो रूल्स सारे यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। देन हम वो रूल्स को फिर से पढ़ेंगे जिससे कि हमारी कोई गलती ना हो, हमारा असाइनमेंट पूरी तरह से आप स्टडी सेंटर तक पहुंच जाए। फिर आप देखेंगे कि असाइनमेंट का जब हमने नेक्स्ट बटन क्लिक किया तो उसमें ईमेल आईडी है आलोक, मैं अपना ईमेल आईडी भरता हूँ, ठीक है। और इसमें ईमेल एड्रेस यू हैव सबमिटेड, अगेन ईमेल एड्रेस यू हैव सबमिटेड ड्यूरिंग द एडमिशन। हो सकता है कि आप जिस ईमेल आईडी से आप हमको भेज रहे हैं और आपने जब एडमिशन के समय में कोई ईमेल आईडी आपने यूज किया था जो कि दोनों ही अलग है। तो अगर हमारा दोनों अलग है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे। मैं सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको कहता हूँ कि मेरा एडमिशन के समय में आलोक.मनोविकास.co.in था, और लेकिन हमारे पास जीमेल आईडी क्या है, अभी हमारे पास जो जीमेल आईडी है वो हम पूरे ऊपर में लिखेंगे। और जो आप एडमिशन के समय में जो ईमेल आईडी, अगर आपका जीमेल आईडी नहीं था तो आप कोई और ईमेल आईडी यूज किए थे तो वो यहाँ लिखेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप लर्नर्स का नाम लिखेंगे पूरी तरह से, आपका जो भी नाम आपका है वो पूरा नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपने एडमिशन के समय में दिया हुआ। आपके इनरोलमेंट नंबर होने चाहिए। इनरोलमेंट नंबर अमूमन कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट, अमूमन 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप पूरी तरह से आप अपना आईडी कार्ड देखिए और वहां पर देखिए कि आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है। और जब आईडी कार्ड आपके पास होगा, जब ये असाइनमेंट फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। फिर वहां पर आपको पता चलेगा कि आप किस सेशन में एडमिशन लिए थे। तो सपोज मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ तो मैंने जनवरी 2018 में ही एडमिशन लिया था और हमारा स्टडी सेंटर का नाम है 290047D। तो हमने ये कोड डाल दिया।
और मे भी मेरा प्रोग्राम है MSW-C। आपको देखना है कि कौन से प्रोग्राम में आप MSW-C में है, MSW में है, BSW में है, कैफे डेफे में, किस प्रोग्राम में, यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट है। तो सपोज मेरा प्रोग्राम था MSW-C। अब हमने ये पूरा अपना एक पूरा ब्यौरा डाल दिया है, बहुत ही बेसिक ब्यौरा डाला है, और हम जाएंगे नेक्स्ट। तो जैसे ही हम नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि MSW में जितने भी कोर्स थे, MSW में जितने भी कोर्स थे, 1 2 3, आपका हर कोर्स का कोड अलग अलग है ना। तो आप जिस कोर्स कोड में आपका असाइनमेंट बना हुआ है, जिस कोर्स का आपने असाइनमेंट बनाया हुआ है, वो कोर्स कोड हमें चुनना है। हमने सुना MSW A, और हमारे पास कोई एक असाइनमेंट बना हुआ होना चाहिए जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये जब हम खोलते हैं तो जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसको हमें क्या करना है, अपलोड करना है यहाँ पर। और ये असाइनमेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 MB। तो आपके फाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, जहां पर आपने असाइनमेंट रखा है वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमने कहा ऐड फाइल। तो सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, हम अपने डिवाइस से वो असाइनमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। और ये असाइनमेंट जो मैं सबमिट करने जा रहा हूँ वो मैंने डाउनलोड पेज पे रखा था, तो मैंने डाउनलोड पेज पे ओपन करके डाल दिया। और फिर हमें डालना है अपलोड का बटन, और ये देखेंगे धीरे धीरे अपलोड का प्रोग्रेस आपको दिखाएगा। और ये हमारा असाइनमेंट, एक असाइनमेंट हमारा सबमिट हो गया। और हमारे पास जब ये सबमिट हो जाएगा तो क्या होगा, एक ऐसा बटन आएगा, एक ऐसा पेज आएगा। फिर अगर आप दोबारा कोई और असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो गो फॉर द सेकेंड असाइनमेंट सबमिशन। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे जीमेल पे इस असाइनमेंट का कोई रिस्पांस आया या नहीं। आपके ईमेल पे कोई रिस्पांस इस असाइनमेंट का आया या नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम देखना चाहते हैं, मैं अपना जीमेल आईडी खोलना चाहता हूँ, और जीमेल आईडी मैं खोलना चाहता हूँ जो मेरा, ये मेरा alok.bhuvan पे हमने डाला था उसको, तो हम इस पे खोलना चाहते हैं। नेक्स्ट। और आप देखेंगे कि ये देखिए मेरा जो असाइनमेंट सबमिशन का था फॉर्म, वो क्या हो गया, आ गया। और जो जो चीज मैंने सबमिट किया था वही सबमिट क्या है हमारे पास एज एन एक्नॉलेजमेंट है। तो एज ए लर्नर आपको क्या होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मैंने लिखा थैंक यू फॉर फिलिंग आउट द असाइनमेंट सबमिशन। और आपने जो जो इंफॉर्मेशन सबमिट किया था वही इंफॉर्मेशन आपके ईमेल पर आ जाएगा। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट ऑल द लर्नर्स, go to the website Manovikas, igno.manovikas.family. There in home you can find out the information. If you scroll down you will find the information कि आपको information यहाँ पर करना। एक और query form है, अगर आपको कोई query हो, कोई information हो, तो you can ask here कि आपका कोई program है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको असाइनमेंट से रिलेटेड एक कॉलम मिलेगा, और यहाँ पर भी असाइनमेंट सबमिशन का आपको बटन मिलेगा। यहाँ भी आप डायरेक्ट, अगर नहीं आपने बार बार तो नहीं पढ़ना है, तो अगर बार बार नहीं पढ़ना है तो आप असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तभी आपको सारा इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तो मेरे प्यारे जितने भी लर्नर्स हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो को देखा है। और इस वीडियो से आपको बड़े आसानी से, मैं समझता हूँ कि असाइनमेंट सबमिशन, आप अगर मनोविकास के लर्नर्स हैं तो आपको असाइनमेंट सबमिशन में बहुत ही आसानी होगी। सो अभी सभी को धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। कनिष्का कट।